रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल। तो आज हम समझेंगे कि हाउ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क्स बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स। Thermodynamic principle. The reciprocating compressor is a positive displacement machine used for the generation of pressure rise of gas. And pressure rise occurs in reciprocating compressor due to compression process where volume of gas is decreased by the piston and cylinder arrangement. The gas is taken into the cylinder through the suction valves and compression of gas occurs by piston. Due to the decrease in the volume of the gas, pressure increases and discharge valve gets opened up and gas is discharged into the discharge piping and system. Means गैस को compress करते हैं through the piston arrangement, and because of the compression volume decreases and pressure rise occurs, and after achieving the discharge pressure or more than discharge pressure, then the valves gets opened up and gas is discharged into the system. This is the basic philosophy or principle on which a recip compressor works. Interstage coolers are used to cool down the high discharge temperature before entering into the next stage to save the power in multi-stage compressor. क्योंकि लिमिटेशन होता है सिंगल स्टेज से हम प्रेशर राइज जो करते हैं एक सर्टेन वैल्यू तक करते हैं। अगर आपको प्रेशर राइज ज्यादा चाहिए तो आपको मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा और इसके लिए हर एक स्टेज में आपको गैस को कूल करना है टू सेव द पावर। Sometimes water jacket cooling around the cylinder is done to cool down the compressed gas little bit. The total power consumed by the compressor is summation of the power of all the stages of the compressor including mechanical power losses. तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग कपलिंग पावर, जिसमें अगर मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो हर एक स्टेज का स्टेज पावर ऐड कर दीजिए, उसके बाद उसमें जो बेरिंग लॉसेज है मैकेनिकल लॉसेज है सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कपलिंग पावर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल को समझने के लिए पीवी डायग्राम यूज करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो एक्स एक्सिस पे देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वी से हमने दिया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका यूनिट को मीटर क्यूब पर सेकंड दिखाया है। एंड वाई एक्सिस पे जो प्रेशर है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर में डाला है, उसको हमने पास्कल एब्सोल्यूट लिखा है। तो ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इन वाई एक्सिस पे प्रेशर है व्हिच इज इन पास्कल एब्सोल्यूट में। To understand more, let us consider single acting recip compressor which has four thermodynamic process in one revolution. तो ये four process क्या है? One process called compression process, another is called constant discharge process. So compression process, ये compression process हुआ 1 dash 1 2 2 dash, then constant discharge pressure that is 2 dash 3 dash is a constant discharge process, and expansion हो गया आपका 3 dash 3 4 and 4 dash is called expansion process, and constant suction pressure हो गया आपका 4 dash and 1 dash. But before going into the compression process or expansion process or constant discharge process or suction process, let us understand what are the compression chamber process pressure. compression chamber process किसको बोलते हैं, 1 dash and 2 dash दिखाया है, यानी 1 डैश का ये प्रेशर जो है P1 डैश एंड P2 डैश, यही प्रेशर है कंप्रेशन चैम्बर का। सक्शन में जब रहेगा तो मिनिमम प्रेशर हो जाएगा P1 डैश एंड डिस्चार्ज में मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा P2 डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि P1 का जो प्रेशर है वो इनलेट का प्रेशर है, तो कंप्रेशन चैम्बर का प्रेशर लेसर देन इनलेट प्रेशर हुआ, एंड डिस्चार्ज का प्रेशर जो है P2 है, तो कंप्रेशन में जब डिस्चार्ज होगा उस समय प्रेशर होता है P2 डैश व्हिच इज मोर देन P2। तो ये रेंज हो गया कंप्रेशन चैम्बर प्रेशर्स का रेंज P1 डैश टू
P2 डैश, वेयर एक्चुअल में इनलेट में जो गैस है उसका प्रेशर P1 है एंड P2 है डिस्चार्ज में। तो इनलेट प्रेशर ऑफ कंप्रेसर इज P1, इनलेट प्रेशर इनसाइड द कंप्रेसर चेंबर हम लिखेंगे P1 डैश, अब देखिए उससे लेस है। डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर ये P2 है एंड डिस्चार्ज प्रेशर इनसाइड द कंप्रेसर चेंबर P2 डैश है व्हिच इज मोर देन P2। कैसा करना पड़ता है? दिस इज व्हाट इट इज रिटन, सक्शन इन डिस्चार्ज वाल्व्स आर ओपनड based on the differential pressure across the valve. The minimum differential pressure to open the valve is based on the spring stiffness, and minimum pressure required to open the valve is provided by the valve manufacturers. ये कितना डिफरेंशियल प्रेशर पे वाल्व खुलेगा उसका, और ये कितना डिफरेंशियल पे डिस्चार्ज का वाल्व खुलेगा, इसका वैल्यू डिफरेंशियल प्रेशर मैन्युफैक्चरर वाल्व मैन्युफैक्चरर आपको दे देता है। किस बेसिस पे काम करता है? सक्शन वाल्व्स ओपन्स व्हेन द डिफरेंशियल प्रेशर P1 माइनस P1 डैश इज मोर देन द सेट वैल्यू, जिसने बताया कितना होना चाहिए उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो जाएगा तो वाल्व खुल जाएगा। एंड क्लोजेस व्हेन द डिफरेंशियल प्रेशर इज लेस देन द सेट वैल्यू, जो भी सेट वैल्यू है अगर एक्चुअल में ये वैल्यू उससे ज्यादा हो जाएगा तो वाल्व खुलेगा, इससे कम रहेगा तो वाल्व बंद होगा सक्शन में। Discharge valves opens when the differential pressure P2 dash minus P2 is more than the set value, and valve closes when the differential pressure is less than the set value. तो वाल्व खोलने के लिए P1 minus P2 डैश का वैल्यू जो वाल्व मैन्युफैक्चरर सेक्शन का दिया उससे ज्यादा होना चाहिए तो वाल्व सेक्शन वाल्व खुलेगा, और यहाँ वाल्व खोलने के लिए P2 डैश minus P2 का वैल्यू भी डिस्चार्ज में जो सेट वैल्यू वाल्व का दिया उससे ज्यादा होगा, डिस्चार्ज वाल्व खुलेगा। तो दिस इज द बेसिक principle on which the valves open, and this is the compressor chamber process. अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जाते हैं तो फर्स्ट जो आता है कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब वन डैश पे अगर पिस्टन है वहां से पिस्टन अभी स्टेशनरी है, नाउ इट स्टार्ट्स कंप्रेशन एंड गैस इज ऑलरेडी इन इन द सक्शन चैम्बर, गैस अवेलेबल है। अब यहाँ वन डैश के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम हमने V1 लिखा है, टू डैश के करस्पॉन्डिंग को V2 बोला है, फोर डैश को हमने वो V4 बोला है, एंड थ्री डैश को हमने V3 बोला है। ये एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है करस्पॉन्डिंग दैट पोजीशन ऑफ द सिलेंडर और पोजीशन ऑफ बोल सकते हैं पॉइंट और प्रेशर। तो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे काम करता है। Prior to start of the compression process, gas is filled in the compressor chamber through the suction valves. इस पॉइंट पे मान लीजिए अभी गैस आया हुआ है इनसाइड सिलेंडर में है, pressure of chamber is slightly lower than the suction valve when which is shown as a 1 dash। देखिए ये सक्शन प्रेशर से चैम्बर का प्रेशर कम है, 1 dash है। Piston is at the standstill and now it starts compressing the gas by decreasing the volume of the gas। अब यहाँ से कंप्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। When the compressor chamber pressure becomes equal to discharge pressure which is shown as 0.2, अभी यहाँ आ गया, डिस्चार्ज वाला स्टिल डजंट ओपन, अब इक्वल होने पे वाल नहीं खुलेगा बिकॉज वी नीड अ डिफरेंशियल प्रेशर। तो क्या होगा, when the compression chamber pressure slightly more than the discharge pressure which is shown as 2 dash, और further compress किया तभी 2 dash हो गया which is more than 2, then the discharge valve opens and gas starts feeding into the discharge system। उसके बाद वाल्व आपका यहाँ खुल गया और इसके बाद आप फीड कर सकते हैं गैस को। And this process is called the compression process। Volume corresponding to the process 1 dash and 2 dash are shown as a V1 and V2 respectively। अब देखिए 1 dash को हमने V1 बोला है, 2 dash को V2 बोला है, and this is the work done on the gas for pressurizing from lower pressures to higher pressures। यही main compression process होता है गैस के लिए। तो ये प्रोसेस समझिए 1 डैश 1 2 डैश एंड 2, ये कितना स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आपको कितना डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए। अगर डिस्चार्ज प्रेशर और चाहिए तो ये 2 डैश मूव हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, अगर आपको कम चाहिए तो इधर ही रहेगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ डिस्चार्ज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। अभी जो सेकंड प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट डिस्चार्ज प्रोसेस, दैट इज 2 डैश 3 डैश। आप देखिए ये 2 डैश 3 डैश है। यहाँ जो प्रोसेस हुआ क्योंकि आपका डिस्चार्ज प्रेशर जो है
वो सिलेंडर के प्रेशर, सॉरी, चैम्बर प्रेशर के साथ सेम हो गया, मतलब ऑफ कोर्स इफ यू कंसीडर दिस लॉस, देन इट इज, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड चैम्बर प्रेशर with that difference. तो ये फिर प्रेशर में चेंज नहीं आएगा because the valve is opened. So when pressure inside the cylinders becomes slightly more than the discharge pressure, valves gets opened and gas is discharged into the discharge header. The process 2 and 2 dash is a differential pressure across the valves, and it depends on the type of valve और spring stiffness. ये कितना होगा डिपेंड करता है वाल्व का साइज पे, वाल्व का स्प्रिंग स्टिफनेस पे. As the compressor chamber pressure floats with the system discharge pressure, so pressure remains constant until the piston moves to maximum stroke as shown as a 3 dash. यहाँ से यहाँ प्रेशर आपका सेम रहेगा कि फ्लोट कर रहा है. वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर 2 डैश एंड 3 डैश आर शोन एज ए V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली. अब देखिए 2 डैश को हमने V2 बोला और 3 डैश को V3 बोला. तो वॉल्यूम V1 माइनस V3, ये यहाँ से यहाँ V1 है एंड यहाँ से यहाँ V3 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V3 ये. तो वॉल्यूम V1 माइनस V3 इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम और स्ट्रोक लेंथ. स्ट्रोक लेंथ इज अ ट्वाइस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. क्रैंकशाफ्ट का जो रेडियस होगा उसका डबल होता है. Piston reaches to the another extreme end and volume V3 is called the clearance volume, as some of the gas left inside the compression chamber, and this left out gas gets expanded in the return stroke. Most of the gas is discharged, but still there is a clearance volume 3 days to end of this, and this small amount of gas is really expanded in this process. So 2 days and 3 days is called constant discharge process. अभी जो थर्ड प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस, विच इज अ 3 days, एक्चुअली 3 days, 3, 4 and 4 days. यहाँ चेंज है थोड़ा सा करना पड़ेगा. इस प्रोसेस को एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं. व्हेन द पिस्टन स्टार्ट्स रिटर्निंग, अब यहाँ से रिटर्न करेगा स्ट्रोक, रिटर्निंग फ्रॉम द पॉइंट 3 dash एंड करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3, यहाँ वॉल्यूम इस प्रेशर पे ये वॉल्यूम है, यहाँ से अभी एक्सपेंशन हो रहा है, रिटर्न हो रहा है. The pressure inside the compression chamber falls. As the pressure inside the chamber drops, discharge valve gets closed. The expansion of left out gas, which is small in volume corresponding to V3, यहाँ जो भी वॉल्यूम इस प्रेशर पे है वो स्मॉल अमाउंट में है, which is now started expanding. As the piston returns and expansion gas starts, pressure inside the chamber falls from 3 dash to 3. यहाँ से आते ही ड्रॉप हो गया. And then comes to 4, यहाँ आ गया. The pressure inside the chamber at 4 is equal to suction pressure. अगर यहाँ रहेगा तो suction के बराबर रहेगा. The but still suction valve doesn't open as the minimum differential pressure between the suction and chamber is not maintained. So at point 4, differential pressure is 0, so suction valve doesn't open. When the piston moves further from 4 to 4 dash, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो differential pressure between suction and chamber is maintained, and so suction valves is opened at 4 dash. यहाँ वाल्व को, यहाँ पे suction valve खुल जाता है. So chamber का pressure less than inlet हो गया. तो इस प्रोसेस को एक्सपेंशन 3 डैश 3 4 4 डैश, एक्चुअली यहाँ आना चाहिए 3 डैश 3 4 4 डैश, इसको हम बोलेंगे expansion process. Expansion process में only small amount of gas is expanded. अभी constant suction process क्या है, that is called 4 dash and 1 dash. Entry of the gas is started through suction valve from the point 4 dash until 1 dash when the piston moves from the 4 dash to 1 dash. The volume of the gas V1 minus V4 means V1 minus V4 ये is called the actual volume entered inside the chamber. Actually इतना ही gas enter होता है. The mass of the gas corresponding to this volume is actually discharged after compression.
कंप्रेशन में इतना ही गैस को कंप्रेस करके भेजते हैं, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा था ना, नेक्स्ट टाइम उतना एक्स्ट्रा फिर से आ जाता है। तो एक्चुअल में इतना ही गैस V1 माइनस V4 ही गैस आता है और जाते रहता है। तो लेफ्ट आउट मास करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम V3 रिमेन सेम आफ्टर दिस प्रोसेस, नेक्स्ट साइकिल ऑफ गैस स्टार्टेड। जब दूसरी बार में फिर इतना बच जाता है, एवरी टाइम सेम अमाउंट यहाँ रहता ही है लेफ्ट आउट में, इतना ही गैस एक्चुअल में कंप्रेस होता है और डिस्चार्ज होता है। तो इससे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होगा? मास ऑफ द गैस करस्पॉन्डिंग टू द वॉल्यूम V1 माइनस V4, V1 minus V4 is the actual compressed and discharged out from the compression chamber. The mass of the gas corresponding to the clearance volume V3 remains constant. यहाँ के corresponding जो भी मास है ना, वो हमेशा चैम्बर के अंदर रहता ही है। Although the power or work is generated due to expansion of the clearance volume gas, but this power is consumed as the compressor does work in compressing of extra same amount of clearance volume gas, which is shown as a volume V1. यहाँ तो एक्सपेंशन से कुछ मिला, लेकिन जब यहाँ आता है तो वो गैस भी यहाँ फिर से कंप्रेशन में हो जाता है, तो कैंसिल आउट हो गया। जितना यहाँ पावर मिला था इतना कंप्रेस में खर्च हो गया, तो एक्चुअल में इतना ही पावर हमने कंज्यूम किया, इसका एडवांटेज यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या बोलेंगे? So it can be said that the actual work done by compressor is only handling mass of gas corresponding to volume V1 and V4। V1 एंड V4 को ही एक्चुअली हम हैंडल कर रहे हैं कंप्रेसर। रिमेनिंग गैस तो हमेशा एक से एक्सपेंशन होता है, बाद में कंप्रेस हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। So although the gas rise, although compressor rise occurs from suction pressure P1 to pressure P2, आपका प्रेशर राइज बाहर से देखेंगे तो P1 से P2 ही हुआ, but compressor does work more compressing from inlet pressure inside a chamber which is P1 dash टू डिस्चार्ज प्रेशर P2 डैश, एक्चुअली P1 डैश होना चाहिए यहाँ। आप देखिए एक्चुअल में कंप्रेसर तो यहाँ P1 डैश से P2 डैश करता है। तो जब हम कंप्रेसर का पावर निकालते हैं या वर्क निकालते हैं एक्चुअल में, तो हमको कंसीडर करना है P1 डैश से P2 डैश। ऑल दो सिस्टम में आपको मिलेगा P1 से P2, बट एक्चुअल में वर्क थोड़ा P1 डैश से P2 डैश होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको जो मास आएगा V1 माइनस V4 के करस्पॉन्डिंग जो भी मास है वही एक्चुअली मास हुआ जो हैंडल कर रहा है, एंड प्रेशर राइज हुआ P1 डैश से P2 डैश। तो आई होप कि ये थोड़ा बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कैसे काम करता है, व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस फॉर रिसीव कंप्रेसर, ये आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू। थैंक यू।